कालूच हांव तेका उलयता असो सांगतालो व्हडले व्हडले आज MLA आहा ते तेंच्या लागीं तो सगळ्यांवर रिप्रोच जाल्लो आनी सगळ्यांनी म्हणटा आपणाक चाव दिली जेवण दिलें पूण आम आदमी जॉइन जायचा रेडी जायना जालें गोवा का लोग अजीब है म्हणटा से और उनके भी काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आकाश बाब। आम्ही नॉर्थ सावथाचो नॉर्था गेले तर मोदींतल्यान एकलो व्हडचो लेखा म्हणटा आमच्या आम आदमी पार्टीचो दीपक सिंगला जी सो दीपक सिंगला लुकिंग एट द सेंटर पार्ट ऑफ गोवा prominent beloved leader Raghunath ji, who is no more with us today. And these people, Cruz and Judson, came to our office that they wanted to be part of Aam Aadmi Party. That is the day I still remember when they approached and we felt so good that at least someone is joining the party. At least someone is coming and meeting us over there, apart from already people who were there with the party. When we used to talk to anyone, everyone used to say, Goa is very difficult. Goa is a different kind of state. And that is true. It is a different kind of state. Goa is very difficult. You will not be able to do anything here. Hardly anyone gave us an encouraging statement. But today, as we see, this side is full of people who have been elected by effort of all of you. We have Sarpanch, ex-Sarpanch, Panchas, Zilla Parishad members, all Panchas and Sarpanchas here and their Panchas. I got, before coming here, I sent a message to everyone in this group. That someone sent a message saying that he came to Goa and he said that people were talking of the work being done by our enemies in general. And they were saying that we would want to give a chance to Aam Aadmi Party this time because they have seen your work. That was the most encouraging statement I had seen in a lot of, since a lot of time. And that is truth. The way I see the kind of work these two MLAs are being doing, I think only if we can take that work along with what we have done in other states, there is no reason that, as all of you are saying, as Rajesh Bhai just said, that we cannot have, there is no reason I see that we cannot have our Chief Minister next time. We can have it. But reaching there will require a lot of effort from everybody, each and everyone. As Jason said, the first meeting which we had here in Chinchini, perhaps it was in 2015, end of 2015, that was the day we got confidence that we can do something in Goa. Because as of today, that day also this hall was full. And people were asking a lot of questions. Everyone who was sitting here had some or other question. How do you do that? What would you do here? You are a party from outside. Should we believe, should we not believe? But that is past. Today, I think no other party than Aam Aadmi Party is more of Goa compared to any other party. It is a party which thinks of Goa, which thinks of its people, which thinks that what needs to be done so that Goa can be taken to a next level. And that is the confidence we have to give to everyone in each corner of Goa. And it is not difficult. If you think of it mathematically, if you think of it effort-wise, nothing is difficult here. In around 2020,
Venzi and I had a talk, and he said that if he starts working now, that is in 2020, he was sure that he can make it. मैंने 2017 का चुनाव लड़ा, मैं चंद वोटों से हार गया, लेकिन आपके गोवा के बाद जाने के बाद फिर से मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का म्युनिसिपल काउंसिलर का चुनाव लड़ा। और जैसे आपके यहाँ पे तो काउंसिलर छोटे वोट होते, कम वोट होते हैं, वो हमारे यहाँ 60,000 वोट थे, तो मैं 7,000 वोटों से जीत के आया। तो गोवा तो मेरे लिए शुभ है। यहाँ से जाने के बाद म्युनिसिपल काउंसिलर की टिकट भी मिली और वहां पे बन भी गया, और अभी हाल फिलहाल में स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। लेकिन एक बात बड़ी काबिले तारीफ है, आम आदमी पार्टी के साथ परिस्थितियां अक्सर ऐसी आती रहती है कि इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। कार्यकर्ताओं के लिए भी परिस्थितियां आती हैं ऐसी, मेरे जैसे काउंसलर्स के लिए भी आती हैं परिस्थितियां, और एमएलए के लिए भी आती हैं। 2 बारी का लगातार मैंने चुनाव देखा गोवा के अंदर। पहली बार जब 17 सीटें आई तो 14 एमएलए वहां छोड़ के कांग्रेस के चले गए। इस बार 11 सीटें आई कांग्रेस की, 8 एमएलए छोड़ के चले गए। बेस्ट पार्ट आपका यह है कि आपके पास 2 एमएलए और दोनों के दोनों आम आदमी पार्टी के। लोग, वहां की जनता, वहां के रेजिडेंट्स ये जरूर देखते हैं, 2 चीजें जरूर देखते हैं। एक, उनको होप दिखनी चाहिए आपके अंदर, मतलब उनके सपने साकार करने की क्षमता हमारे अंदर है कि नहीं है। दूसरी बात, विनेबिलिटी देखनी चाहिए। ये 2 पैरामीटर्स पे आप दूसरे स्टेट पे तो चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन आपके यहां पे पार्टी के साथ भी व्यक्ति टिका हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है तीनों के तीनों फैक्टर्स इस चुनाव के अंदर काफी फेवर में काम करेंगे। एक, आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 2 सीटें जीत के दिखाई है, यहां पे हम चुनाव जीत सकते हैं यहां पे। दूसरी बात, हमारे से देख के, आम आदमी पार्टी को देख के पूरे हिंदुस्तान के अंदर होप दिखती है, यानी कि गोवा के अंदर भी होप दिखती है। और तीसरी बात, हमारे वो 2 लीडर्स जो आम आदमी पार्टी के, जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, बीजेपी से, कांग्रेस से परेशान होके, वो आज भी आम आदमी पार्टी के पास है। ये सबसे बेहतरीन बात है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से आने वाले चुनाव में उम्मीद करते हैं कि इस बार 2027 में यहां पे भी गवर्नमेंट फॉर्म करके जाएंगे और आप ही लोगों का मुख्यमंत्री हम यहां से बना के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेंसी भाई ऐसा था कि सब कहते थे वेंसी जीत जाएगा, लेकिन क्रूज भाई ने इतना शानदार ग्राउंड पे काम किया कि वो भी जब जीत के आए तो पता लगे कि वेंसी योगत के साथ साथ क्रूज सिल्वा भी आम आदमी पार्टी के विधायक बन के आते जीत के आए हैं। हमें ऐसा ही काम अगले 2 सालों में पूरे गोवा में करना है, और जो 2 सीटें हम 2022 के चुनाव में गोवा में जीतते, इसको कम से कम 20 सीटें जीत के दिखाना है और गोवा में आम आदमी पार्टी का सीएम बनाना है। बनाएंगे, करेंगे मेहनत। एक बार हाथ लगा बता दो, सारे मेहनत करेंगे। सबने मिलकर मेहनत करनी है, सबने मिलकर लगना है, बहुत मेहनत करनी है, और इन दोनों को दोबारा जिताना है। और साथ ही साथ जिसको भी पार्टी टिकट देगी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, उनके साथ रख के हमें अपनी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का सीएम बना के दिखना है। कर देंगे ना जी? बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार टीम है, जब भी वो आते हैं इतनी शानदार टीम से मुलाकात होती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब 2 ईमानदार विधायकों को गोवा की जनता ने देख लिया है, तो इस बार वो ईमानदार पार्टी को गोवा में जिता के भेजेगी और हम सबको एक मौका देगी कि हम दिखा पाएंगे